السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ انعام آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ دیکھیں پیچھے آپ کو یاد ہوگا آیت تھی کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ خنزہ اپنا کیمرہ آن کیجئے۔ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اور زور لگا کے قسمیں کھاتے ہیں، خوب زور دے دے کے۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو وہاں بھی یہ بات بتائی گئی تھی، اس سے پہلے بھی اس طرح کا مضمون آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ زمین میں کوئی سرنگ کر لو یا آسمان پہ سیڑھی لگا کے چلے جاؤ اور تم کوئی آیت اور نشانی لا سکتے ہو تو لے آؤ، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی فطرت، اپنی عادت ہی ایسی بنا لی ہے۔ خنزہ کیمرہ آن کیجیے اپنا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی آیت کا جواب دے رہے ہیں، ولو اگر، اننا بے شک ہم، انا اور پھر نہ ہے، انا مانے بے شک ہوتا ہے، نہ مانے ہم، بے شک ہم، نزلنا، نزل ينزل، نون زالام سے بنتا ہے، نزلہ، نزلہ سے، اس کا معنی ہوتا ہے اتارنا۔ نزلنا اگر ہم اتار دیتے، الیہم ان لوگوں کی طرف، الملائکہ، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، ملک اس کا سنگولر ہے۔ اگر فرشتے اتار دیتے، وکلم، کلم یکلم، تکلیم کلام سے بنا ہے، بات کرنا، وکلم اور بات کرتے، ہم ان لوگوں سے، الموتا مردے۔ تو ان لوگوں کی ایک یہ بات بھی تھی، ایک بات یہ بھی کہتے تھے یہ لوگ کہ بھائی دیکھو، تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد سب پتہ چل جائے گا، تو تم ایک کام کرو، جو ہمارے پرانے لوگ مر چکے ہیں، ہمارے باپ دادا، ہمارے آباء و اجداد جو مر چکے ہیں، ہمارے باپ دادا، ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا نا۔ اب مرنے کے بعد جب پتہ چل جاتا ہے تو ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا، تم انہیں زندہ کرا دو اور وہ ہمیں بتا دیں گے ساری آپ بیتی کہ کیا ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، اور پھر ایسا ہوگا تو ہم یقین کر لیں گے، ہم بات مان لیں گے۔ تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ان کے اوپر فرشتے ہم بھیج دیں، ان کے طرف فرشتے آ جائیں اور وکلمہ اور بات کر لیں، ہم ان لوگوں سے، الموتا مردے، مرے ہوئے لوگ، وحشرنا، حشرہ معنی ہوتا ہے جمع کرنا، وحشرنا اور ہم جمع کر دیں، علیہم ان لوگوں پر، کل شیء ہر ایک چیز کو، قبولاً سامنے، ان کے سامنے ہر ایک چیز کو لا کر ہم جمع کر دیں، ما کانو تو نہیں ہوں گے یہ لوگ، لیؤمنو کے ایمان لے آئے، کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا مگر یہ، ان کے یشاء اللہ اللہ چاہ لے، اگر اللہ چاہ لے تو لے آ سکتے ہیں، ورنہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ولیکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لوگ، یجہلون سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ جیم ہا لام جہلون، جہالت بھی اس سے بنتا ہے، آپ نے سنا ہوگا جہالت، نا علمی، نادانی، لیکن اکثر لوگ ان میں سے نادان ہیں، نا سمجھ ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر اللہ چاہ لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان کے ایمان لانے کو نہیں چاہتا ہے، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے اپنی عادت بنا لی ہے، یہ ہر آیت کو دیکھ کر یہ جھٹلائیں گے۔ جیسے ایک اور جگہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر
یہ لوگ سیڑھی لگا کے آسمان پہ بھی جانے لگے اور چڑھنے لگے تو کیا بولیں گے کہ ہمیں جادو کر دیا گیا ہے، لگتا ہے کہ جادو کر دیا ہے. ایسا ہے نہیں حقیقت میں، انہوں نے تو جادو کر دیا ہماری آنکھوں پہ. جس طرح فرعون نے بھی اسی طرح کی دلیل دی تھی کہ تم تو وہ ہو کہ تم نے جادو کر دیا ہے، تم جادوگر ہو اور جادو سے ہمیں پاگل بنا رہے ہو. حضرت موسیٰ کو یہی جواب دیا تھا. تو ہر طرح کی نشانی کے باوجود بھی یہ لوگ یہ کہیں گے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے، مطلب اگر اللہ مجبور کر دے، جیسے اللہ کے پاس وہ طاقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور کر دے ہر انسان کو کہ وہ، جیسے اللہ تعالیٰ مجبور کر سکتا ہے کہ انسان نہ دیکھ پائے تو اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لے. اللہ تعالیٰ مجبور کر سکتا ہے کہ کان سے نہ سن پائے، یہ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کو مجبور کر دے ایمان لانے پر، اور وہ مجبوراً ایمان لے آئے. جیسے کہ ہر ایک چیز کو فطرت اسلام پہ بنایا گیا ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے اب صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کا. باقی ساری چیزیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. تو ایسے ہی انسان کو بھی مجبور کر سکتے تھے اللہ. وہی بات ہے الا یشاء اللہ، اگر اللہ چاہ لے، یعنی اللہ اگر مجبور کر دیں تو ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں گے. سوری، ہو سکتا نہیں، پھر ایمان لے آئے گی. ہو سکتا نہیں کہیں گے کہ اگر اللہ مجبور کر دیں تو پھر کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ کسی بھی طرح کی نشانی یہ دیکھ لیں گے نا تو یہ یہی کہیں گے کہ اب تو آپ نے جادو کر دیا، یہ کیسے مان لیں ہم، تم نے تو یہ کر دیا. اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے کیونکہ ان لوگوں کی عادت یہی ہے، اور یہ اکثر لوگ نادان ہیں، جاہل ہیں. اور اگر ہم ان پر معاف کیجیے گا، ہاں، اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ساری چیزیں ان کے سامنے اکٹھا کر دیتے. قبول قابلہ سے بنا، مقابلہ، مقابلہ سنا ہے اپنے، مقابلہ کرنا، کسی کے سامنے آنا. مقابلہ وہ قاف با لام سے بنتا ہے. تو قبول مانے ہوتا ہے سامنے. ان کے سامنے اکٹھا کر دیتے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے. اللہ یہ کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ مجبور اگر کر دے تو. مگر ان میں سے اکثر نادانی کی باتیں کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اور مجبور اگر اللہ تعالیٰ کر دیں تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بنایا ہے انسان کے لیے، اور پھر نبیوں کو بھیجا ہے اور اپنے نیک بندوں کو بھیجا ہے، تو وہ مقصد ہی ختم تھے. پھر سب کو مجبور کر کے بس ختم، ایک لائن سے سب کو مسلمان ہی بنا دیا جائے. تو وہ امتحان اور جو اگزام ہے وہ اس میں پھر نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرتے ہیں کسی کو. اور اس کو لوگ غلط لے جاتے ہیں، اکثر لوگ اس کو غلط سمجھے کہ اللہ کے بس کی نہیں ہے. اگر اللہ سچ میں ہوتے تو پھر برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا کیوں نہیں دیتے ہیں. لوگ اس طرح کے سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر غلطی کرنے والے کو، برے لوگوں کو اسی وقت کیوں نہیں روک دیتے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر ایک نبی کے لیے. جعلنا ہم نے بنایا، نون الف زمانہ پلورل کے لیے ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں. ہم نے بنا دیا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر ایک کے لیے. ہر ایک کے لیے کس کے لیے؟ نبی، ہر ایک نبی کے لیے. عدوًا دشمن، عدو دشمن کو کہتے ہیں. شیاطین الانس انسانی شیطان، والجن اور جن والے شیطان. یوحی، اوحا یوحی معنی ہوتا ہے چپکے چپکے بات کرنا، چپکے سے بتا دینا، اشارے سے بتا دینا. یوحی بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض بعض پر وحی کرتا ہے، بعض کو باتیں بتاتا ہے. زخرف القولی، زخرف القولی، زخرف کہتے ہیں چیزوں کو مزین کر دینا. زاخارافا، زاخارافا اس کا معنی ہوتا ہے مزین کرنا. زخرافا مزین کر دینا، سجا دینا. زخرف القولی باتوں کو سجا سجا کر بتاتے ہیں دم اچھے سے، اور اس طرح سمجھاتے ہیں کہ لوگوں کو ارے ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. غرورا، غین را را، غرور معنی ہوتا ہے دھوکا.
तो गुरूरा धोखा देने के लिए वो बातों को समझाते हैं, इस तरह ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं। और इसी तरह हमने शरीर आदमियों और शरीर जिनों को हर नबी का दुश्मन बना दिया। वो एक दूसरे को पुरफरेब बातें सिखाते हैं, बातें सजा जाकर, यानी देखने में अच्छी मालूम हो, धोखा देने के लिए। वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून। वलौ शाअ, और अगर चाहता, रब्बुका तुम्हारा रब, माँ नहीं, फ़अलू वो करते, हु इसको, वो नहीं कर पाते इसको, वो इस तरह की बातें नहीं कर पाते, ना दुश्मनी निभा पाते, ना बातों को सजा कर सवार कर बता पाते, ना किसी को धोखा दे पाते। अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन वही अभी पीछे जो मैंने बताया था वही सेम चीज है, अब दोबारा से बताएं फिर वही बात है। मा फालू, तो वो ऐसा नहीं कर पाते। फा, तो जरहुम, वजरा माने होता है छोड़ देना, जरहुम उससे अम्र है, जर छोड़ दो हुम उनको, वमा और जो यफ्तरून वो झूठी बातें करते हैं उनको छोड़ दो, उनको और उनके हाल पर छोड़ दो उनको। ठीक है। और अगर तेरा रब चाहता तो ऐसा ना कर सकते, बस तुम उनको छोड़ दो कि वो झूठ बांधते रहे, उनको छोड़ दो और उनकी झूठी बातों को छोड़ दो। अंजाम तो उनको भुगतना है, आपको अपना काम करते रहना है। वलितस्ग़ा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति वलियरज़ौहु वलियक़तरिफ़ू मा हुम मुक़तरिफ़ून। वली और ताकि, तस्ग़ा सग़िया साद गैन या, साद गैन या, सग़िया यसग़ा, साद गैन बहुत से भी बनता है रूट इसका। इसका माने होता है झुकना, किसी की तरफ माइल होना, किसी चीज की तरफ झुक जाना, ऐसे बैंड हो जाना, माइल हो जाना। और जब बात को सुनने के लिए आता है, बात को सुनने के लिए आता है तो आदमी ऐसे कान लगा के झुक के सुनता है ना, इसका मतलब होता है पूरी तरह से सुनना, बहुत गौर से सुनना, है ना। आदमी ऐसे झुक के कान लगा के तभी सुनता है जब उसको इंटरेस्ट हो, वो सुनना चाह रहा हो। वली तस्ग़ा और ताकि झुके, माइल हो, इलही उसकी तरफ, अफ़इदतुल लज़ीना उन लोगों के दिल, अफ़इदा फुआद का प्लूरल है, अफ़इदा दिल, पीछे भी आ चुका है। अल्लज़ीना उन लोगों के, ला युमिनून बिल आखिरा जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते हैं, ला युमिनून नहीं रखते हैं वो लोग ईमान, बिल आखिरति आखिरत पर। वली अर्ज़ऊ और ताकि खुश हो जाएं वो उससे, वली और ताकि लिए, लिए माने लिए, ताकि भी बोलते हैं लिए को, और ताकि यरज़ऊ वो खुश हो जाएं हु उस बात से, जो झूठी झूठी और चिकनी चुपड़ी बातें हैं, सजा सजा कर जो बनाकर बताते हैं, ताकि उनके दिल उसके तरफ माइल हो जाएं, वो लोग जो ईमान नहीं रखते और वो उसको पसंद करें। वली यक़्तरिफ़ू, इक़्तरफ़ा माने होता कमाना, कमाना हासिल करना, और ख़ास तौर से झूठी बातों को और गलत कामों को, यानी गुनाह कमाने के लिए माल इस्तेमाल होता है, गलत कामों। वली यक़्तरिफ़ू और ताकि वो कमाएं, मा हुम यक़्तरिफ़ून, मा हुम मुक़्तरिफ़ून, सॉरी, मा हुम जो वो, मुक़्तरिफ़ इक़्तराफ़ा से मुख़्तलिफ़ सब्जेक्ट है उसका, मुख़्तलिफ़ सब्जेक्टिव नाउन है, मुक़्तरिफ़ून यानी डूअर जिसको बोलते हैं, मुक़्तरिफ़ून वो कमाने वाले हैं, उसको ताकि उनको छोड़ दो जो वो कमा रहे हैं, जो वो कमाते हैं, जो वो गुनाह कमा रहे हैं उसको वो करते रहें। और ऐसा इसलिए कि उसकी तरफ उन लोगों के दिल माइल हों जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, माइल माने होता है झुकना, और ताकि वो उसको पसंद करें, और ताकि जो कमाई उन्हें करनी है वो कर लें, जो उन्हें कमाना है वो कमाते रहें, उसमें लगे रहें। अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हकमन व हुवल्लज़ी अंज़ल इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला। आ क्या, फा तो क्या, देखिए फा शुरू में आप देखते हैं हर जगह शुरू में आता है, लेकिन हमजा जो होता है क्या वाला, उसके बाद वाव भी और फा भी उसके बाद आता है, शुरू में नहीं।
अक्सर जगह ऐसा होता है, तो यहाँ पर ही ऑर्डर इसका चेंज हो जाता है। यहाँ पे आ, तो ऐसे समझ लिया फा आ, तो क्या गैर अल्लाह, अल्लाह के अलावा, अल्लाह को छोड़कर दूसरा कोई, अब तगी मैं चाहूं, हकमन हाकिम, हुकुम के एतबार से हाकिम फैसला करने के लिए, क्या अल्लाह को छोड़कर मैं चाहूं कोई और फैसला करने के लिए, वह हुआ और वो है अल्लज़ी जिसने अनजला नाजिल किया इलैकुम तुम्हारी तरफ अल किताब, किताब को मुफस्सला तफसील से डिटेल के साथ, यानी बार बार अलग अलग करके आयतों को अलग अलग पैटर्न से समझाया है जिसने। क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को मुंसिफ बनाऊं? मुंसिफ कहते हैं फैसला करने वाले को, इंसाफ करने वाले को, हालांकि उसने तुम्हारी तरफ वाज़े किताब उतारी है। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअलमून अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिर रब्बिका बिल हक़्क़ि फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। वल्लज़ीना और वो लोग जो, आतैना हमने दिया, हम उनको अल किताब किताब, वो लोग कि जिनको हमने किताब दी, यअलमूना वो जानते हैं, अन्नहु बेशक ये, मुनज़्ज़लुन नज़्ज़ला से मुनज़्ज़ल कहेंगे वो जो नाजिल हुई चीज, नज़्ज़ला नाजिल करना और मुनज़्ज़िल नाजिल करने वाला, मुनज़्ज़ल जो चीज नाजिल हुई है वो, जो चीज रिवील्ड हुई है वो। मुनज़्ज़ल वो जानते हैं, अन्नहु के बेशक ये, मुनज़्ज़लुन नाजिल शुदा है, मिर रब्बिका तेरे रब की तरफ से, बिल हक़्क़ि हक़ के साथ, फला तकूनन्ना तो ला मत हो, तो ला नहीं, तकूना तुम बनो, और नून तशदीद ताकीद के लिए, तुम हरगिज ना बनो, मिनल मुमतरीन, मिनल माने मिन माने से, मुमतर कहते हैं मुमतरी या के साथ, मुमतरी कहते हैं शक करने वाले को, और नून ये यहाँ पर प्लूरल के लिए है, मुमतरीन शक करने वाले। और जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि तेरे रब की तरफ से उतारी गई है, वाक़इयत के साथ, हकीकत के साथ, वाक़इयत हकीकत रियलिटी, बस तुम ना हो शक करने वालों में, बस तुम शक करने वालों में से ना बनो। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमाति व हुवस समीउल अलीम। वतम्मत, तम्मा तमाम से बना है, ता मीम मीम, तमाम आपने सुना होगा, तमाम पूरे को बोलते हैं वतम्मत, और पूरी हो गई या पूरे हो गए, कलिमातु रब्बिका, कलिमतु रब्बिक, कलिमतुन माने बात, कलिमतु रब्बिका तेरे रब की बात, पूरी हो गई तेरे रब की बात, सिद्क़न सच्चाई में, वादला और इंसाफ में, यानी तेरे रब, मतलब ये समझिए कि ये सच्चाई और इंसाफ के टॉप पर है, सबसे पूरी हो गई, यानी इससे आगे कोई और वर्जन नहीं है, इससे आगे कोई और मकाम नहीं है। तो तेरे रब की बात सबसे सच्ची और इंसाफ वाली है। ला मुबद्दिला, ला नहीं, मुबद्दिल बदल से बना है, बदलना बदलना तब्दील करना, ला मुबद्दिला बदलने वाला, मुबद्दिल कहते हैं बदलने वाले को, ला मुबद्दिला बदलने वाला नहीं है कोई, लिकलिमाती ही उसकी बातों को, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं है, वह हुवा समीउल अलीम और बहुत सुनने वाला बहुत जानने वाला है। देखिए इसमें एक चीज ये भी है कि ताने देने से और ये कहने से, यानी उसकी बात बिल्कुल सच्ची है, तुम्हारे ऐसे नहीं, तुम्हारे बोलने से क्या ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठ कह रहे हो, या अल्लाह को ताने देने से, बुरा भला कहने से उसकी बात बदल जाएगी, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने जो बात कह दी है, जो कानून बना दिए हैं उसको पलट दे तुम्हारे। अल्लाह ताला हलीम है। ऐसे बहुत से लोग ताने देने लगते हैं, तो ताने देकर एकदम से बदल दिया कि चलो चलो हम तुम्हें करके दिखाएं, तुम समझ रहे हो झूठ है, चलो अभी दिखाते हैं तुम्हें, लोगों को जिंदा करके पुछवाते हैं, ऐसा नहीं। ये वाला सेंस भी है इसमें। तो ला मुबद्दिला ली कलिमाती, अल्लाह की बातों को बदलने वाला कोई नहीं है। जिस ऐसे नहीं, हलीम कहते हैं बुर्दबार को, जो आदमी कंट्रोल करता हो उसको हलीम कहते हैं। ऐसे नहीं कि मुझसे किसी ने कहा कि नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये
اور مجھے 2-4 लोगों ने ऐसे टॉन्ट कर दिया तो मैं एकदम से गुस्से में आके चलो अभी दिखाता हूँ तुम्हें, देखो रिजल्ट अभी तुम्हें, अगर मेरे पास है। तो ऐसा नहीं करते अल्लाह ताला कि लोग ऐसे कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ऐसे अगर सच्चे हैं तो ऐसा क्यों नहीं कर देते। ये वाला बहुत सुनने वाला है, बहुत जानने वाला है, तो ये वाला सेंस भी है इस आयत में। और नॉर्मल जो आयत का मतलब है बिल्कुल साफ वाजे है कि अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं है। अल्लाह ने जो फैसला कर दिया वो होकर रहेगा और वैसे ही होगा। और तुम्हारे रब की बात पूरी सच्ची है और इंसाफ की है, बिल्कुल सच्ची और इंसाफ वाली है, कोई बदलने वाला नहीं उसकी बात को, और वो सुनने वाला जानने वाला है। وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ। وَإِن और अगर तुति अता से बना है तौन, माने होता है इताअत करना बात मानना। वइन तुति और अगर तुम बात मानते हो, वइन और अगर तुति तुम बात मानते हो, अक्सरा अक्सर जानते हैं आप ज्यादा को बोलते हैं, मन फिल अर्जी जो जमीन में जो लोग हैं उनमें से अक्सर लोगों की बात अगर आप मानोगे, युजिल्लू का अजल्ला युजिल्लू माने होता है भटकाना, गुमराह कर देना, रास्ते से हटा देना। युजिल्लू का वो हटा देंगे तुमको, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, वो अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे। कोई किस तरीके की बातें करेगा, कोई किस तरीके की बातें करेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। इन यत्तबिऊना वो इत्तिबा नहीं कर रहे हैं, इन यहाँ पर नहीं के माने में है, इन नहीं यत्तबिऊना वो पीछे चल रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, इल्ला ज़न्ना मगर गुमान को, सिर्फ जो उनका गुमान है, जो थॉट्स हैं उनकी वो इत्तिबा कर रहे हैं। वो इनहुम और वो नहीं है, इल्ला मगर यखरुसून अंदाजा लगाते हैं। खरस है, खरुसु माने होता है अंदाजा लगाना, गुमान करना, वो सिर्फ गुमान करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, और यकीनी कोई बात उनके पास नहीं है। और यकीनी बात अल्लाह का कलाम है जो बिल्कुल चैलेंज के साथ बार बार कहता रहता है। और अगर तुम लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो तो जमीन में है, जो जमीन में है तो वो तुमको खुदा के रास्ते से भटका देंगे। वो महज गुमान की पैरवी करते हैं, पीछे चलते हैं गुमान के। और कयास आराइयाँ मतलब आदमी सोचता है कि ये ऐसा हुआ है तो ये भी ऐसा हुआ होगा, समझ रहे। कयास आराइया ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर ये काम ऐसा हुआ तो मैं सोचने लगूं ये वाला भी ऐसा ही हुआ होगा, ये होता है कयास करना। कयास आराइया करते हैं, एक दूसरे पर बेस करके अंदाजा लगाते हैं। इन्ना रब्बका हुवा अअलमु मन यज़िल्लु अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। इन्ना रब्बका बेशक तेरा रब, हुआ वो, अअलमु ज्यादा जानता है, मन कौन, यज़िल्लु हटा हुआ है या हट रहा है, अन सबीली तो जल्ला यज़िल्लु गुमराह होना, हट जाना, पीछे बताया था हमने, खो जाना। कौन गुमराह हो रहा है, अन सबीली ही उसके रास्ते से, कौन हट रहा है उसके रास्ते से, तेरा रब ज्यादा जानता है। वह हुआ और वो, आलमु ज्यादा जानता है, बिल मुहतदीन मुहतदीन हिदायत याफ्ता लोगों को, जो सही राह पर है उन लोगों को तो अल्लाह ज्यादा जानता है, तो वो वही तो बताएगा, अल्लाह ज्यादा जानता है। और अल्लाह बता रहा है बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है उनको जो उसके रास्ते से भटके हुए हैं, और खूब जानता है उनको जो राह पाए हुए हैं। फकुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिहि मुमिनीन। फा तो कुलू खाओ, मिम्मा उसमें से, जो ज़ुकिरा याद किया गया, लिया गया, इस्मुल्लाही अल्लाह का नाम, अलैहि उस पर, जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है उसमें से खाओ। इन कुंतुम इन अगर कुंतुम तुम हो, बिआयाती उसकी आयात पर, उसकी निशानियों पर, मोमिनीन ईमान रखने वाले, यकीन करने वाले। बस खाओ उस जानवर में से जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए, अगर तुम उसकी आयत पर ईमान रखते हो। वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मस्तुरिरतुम इलैहि। वमा लकुम
और मा लकुम, क्या हुआ तुम्हें, माँ क्या है, लकुम तुम्हारे लिए, यानी क्या हुआ तुम्हें, अल्लाह ताकुलू कि तुम ना खाओ, मिम्मा उसमें से, जिस पर ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अल्लाह का नाम लिया गया है। वही पीछे वाला पैटर्न है, मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है उसमें से ना खाओ। क्या कारण है, क्या वजह है, वक़द, और यकीनन, फस्सला उसने बयान कर दिया, लकुम तुम्हारे लिए, मा हर्रमा जो उसने हराम किया, अलैकुम तुम पर, जो तुम पर हराम किया है वो सारी चीजें बयान कर दी हैं उसने। और जब बता दिया है उसके बाद क्या वजह है कि तुम उसमें से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है, यानी जो हलाल किए गए हैं तुम्हारे लिए। हाँ, एक कंडीशन ये है कि जो हराम है उसमें से तुम खा सकते हो, बट वो कंडीशन क्या है, इल्ला, मगर ये मस्तूरिर तुम मिले, जिस पर तुम मजबूर हो जाओ, जिसकी तरफ तुम मजबूर हो जाओ, जिसकी तरफ जाने के लिए तुम मजबूर हो जाओ, जो हराम कर दिया गया है, बट तुम इस तरह, माने होता है मजबूर होना, ठीक है, जरर से बना है और ये पैसिव इस्तेमाल होता है। उस तुरिर तुम मजबूर कर दिए गए, जो भी वजह, जो भी रीजन रहे जिसकी वजह से आप मजबूर हो गए इलही, उसकी तरफ जाने के लिए, तो जा सकते हैं। और क्या वजह है कि तुम उस जानवर में से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है, हालांकि खुदा ने तफसील से बयान कर दी हैं वो चीजें जिनको उसने तुम पर हराम किया है, सिवा उसके कि उसके लिए तुम मजबूर हो जाओ। अगर तुम मजबूर हो जाओ हराम के लिए तो ठीक है, वरना वो हलाल होते हुए और फिर भी हराम की तरफ जाए। वइन्न कसीरन लयुदिल्लून बिअहवाइहिम बिगैरि इल्म इन्न रब्बक हुवा अअलमु बिलमुअतदीन। वइन्ना, और बेशक, कसीरन बहुत से लोग, लयुजिल्लूना वो गुमराह करते हैं लोगों को, बिअहवाइहिम अपनी ख्वाहिशों से, अपनी चाहत से, यानी अपनी मर्जियों की वजह से, अपनी चाहत और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो लोगों को गुमराह करते हैं। बहुत से लोग इस वजह से लोगों को भटकाते हैं कि अगर वो सच बोल देंगे तो लोग उनकी बात, यानी उनकी पोल खुल जाएगी, तो वो झूठ बोलते ही रहते हैं लोगों को, ताकि उनकी जो सरदारी है वो बाकी रहे। लयुजिल्लूना वो गुमराह करते हैं लोगों को, बिअहवाइहिम, हवा का प्लूरल है अहवा, अपनी ख्वाहिशों की वजह से, बिगैर इल्म बगैर इल्म के, जहालत में, इन रब्बका बेशक तेरा रब, हुआ आलमु वो ज्यादा जानता है, बिलमुअतदीन हद से तजावुज करने वाले को, हद से बढ़ जाने वाले को। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्म सयुजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून। वज़रू, वही व पीछे जो आया था जर, उसका प्लूरल है जरू, और छोड़ दो, और छोड़ दो, जाहिर अल इस्मी, इस्म कहते हैं गुनाहों को, जाहिर माने दिखता हुआ, जाहिर वो गुनाह जो दिखते हैं, जाहिर अल इस्म गुनाह, गुनाह के जाहिर, व बातिना और गुनाह के बातिन, छुपे हुए गुनाह, खुले हुए गुनाह और छुपे हुए गुनाह छोड़ दो। इन लदीना बेशक वो लोग, यकसिबून अल इस्मा जो गुनाह कमाते हैं, जो गुनाह करते हैं, सयुजज़ौना वो बदला दिया जाएंगे, उनको बदला मिलेगा। पैसिव है यानी उनको बदला मिलेगा, बदला देने वाला का तस्करा नहीं है। सयुजज़ौना उनको बदला दिया जाएगा, बीमा कानू यक्तरिफून उनके इस वजह से कि वो जो कमाते थे, बीमा उस वजह से जो कानू वो थे, यक्तरिफून वो कमाई करते, वो कमाई जो करते थे, जो कमाते थे, गुनाह करते थे, उस गुनाह की बदौलत, उस गुनाह की वजह से उनको बदला मिलेगा। इसलिए गुनाह करना छोड़ दो, चाहे वो जाहिरी गुनाह हो चाहे बातिनी गुनाह हो। जाहिरी गुनाह मतलब जो दिख जाते हैं, जैसे किसी को बुरा बोला बोल देना, उल्टा सीधा कह देना, मार पिटाई करना, चोरी कर लेना, इस तरह के। और बातिना यानी अंदर से किसी के बारे में बदगुमानी करना, जलना किसी से खामखा, इस तरह दुश्मनी रखना, ये सब बातिनी गुनाह है।
اور تم गुनाह के ज़ाहिर को भी छोड़ दो और उसके बातिन को भी। जो लोग गुनाह कमा रहे हैं उनको जल्द बदला मिल जाएगा उसका जो वो कर रहे हैं, जो वो कर रहे थे। ये हमारा आज का सबक है, आप इसको याद करेंगे अच्छे से, वर्ड्स मीनिंग इसके लिख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।